ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور ہم اپنے مہمان سے بھی کچھ دیر میں آپ کو ملواتے ہیں، لیکن میں بہت سے رویے دیکھتی رہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کو بتاؤں. جیسے کہ کل ہم نے میک اپ کے حوالے سے پروگرام کیا تو اس میں بہت سے لوگوں کے کامنٹ آئے، انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، لیکن ایک کامنٹ آیا جو کسی غیر ملکی پاکستانی کا ہے، اور اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بیس وغیرہ گرے ہونے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ چیپ پروڈکٹس کی وجہ سے ہوتی ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، اور پاکستانیوں کو نا صرف گیس بیگنگ آتی ہے، یعنی بس اپنی تعریفیں کرنا آتی ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرنا آتی ہیں اور کچھ نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ جی کسی کا بھی اوپینین ہے، کوئی بھی ایکسپرٹ ہے، ظاہر ہے آپ کو اگر آپ پاکستان سے چلے ہی گئے ہیں نا تو میرے خیال میں وہاں جا کے آپ کو یہ ضرور سیکھ لینا چاہیے کہ لوگوں کے اوپینینز کی رسپیکٹ کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے چلے ہی گئے ہیں تو پاکستان کے پیچھے سے برائی کیوں کرتے ہیں؟ پلے بڑے یہاں، پیدا یہاں ہوئے، سب کچھ ہو گیا، صحیح ہے، آپ نے حالات دیکھے یا جو چیزیں آپ کو موضوع لگی آپ پاکستان سے چلے گئے، دیٹس فائن، لیکن اس کے بعد آپ پاکستان کی مڑ کے کسی بھی پیج پہ برائی کیوں کرتے ہیں؟ پاکستانی ایسے، پاکستان ایسا. ہیں ہمارے یہاں پرابلمز بالکل ہیں، دوسرے ممالک میں بھی ہیں، دوسرے معاشرے میں بھی ہیں، آپ بیٹر جگہ پہ ہیں نا، آپ کو یہ لگتا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر کیوں برائی کرنی؟ اور ایک اور جگہ میں نے اسی طرح سے دیکھا کہ ایک اسکول میں جہاں غیر ملکی بچے پڑھتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی ٹیچر بچوں سے اردو میں بات بھی کر لے، تھوڑی ایک جملہ بھی بول دے، تو مائیں فوراً اعتراض کرتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو اردو سکھانی ہی نہیں ہے. مطلب یہ والا جو کمپلیکس ہے نا، یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا. اور یہ ساری باتیں جو اس سے پہلے والی بات ہے اور یہ بھی بات ہے ہماری خواتین میں ہے. ہماری خواتین میں پتہ نہیں نہ جانے کس قسم کا کمپلیکس اب جنم دے رہا ہے. یہ کیا ایسی مسئلے ہیں کہ بچے جو ہیں بچوں کو اردو سکھانی ہی نہیں ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے بھی بہت سے لوگوں کو ہے کہ اردو سکھانی ہی نہیں ہے. میرے والد صاحب بہت اچھی انگریزی بولتے تھے، مجھے بھی معقول انگریزی بولنی آتی ہے، مگر میں نے اپنے کسی بچے سے کبھی گھر میں، مجھ سے ہوا ہی نہیں. ہاں کوئی ایسی چیز میں ایک آدھ جملہ بول دیا، کوئی چیز کر دی تو میں نے ان سے بولی ہو، لیکن وہ سب ماشاءاللہ بہت فلوئنٹ ہیں، انگریزی بھی بولنی آتی ہے ان کو. اردو میں کوئی ویک ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی جیسا بھی ہے، لیکن بولنی سب کو آتی ہے. یہ اس میں آپ کا مطلب، میں تو چاہتی تھی کہ ان کو سندھی بھی آئے، میں تو چاہتی ہوں ان کو پنجابی بھی آئے، اور اکثر میں ان سے کوئی جملے بولتی بھی ہوں اور ان کو سمجھاتی بھی ہوں کہ یہ ایسے بولتے ہیں. میں اپنے لیے چاہتی ہوں کہ مجھے عربی بھی آئے. تو اس میں ایسا کیا مسئلہ ہو گیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ پاکستان سے جانے کے بعد اتنے کمپلیکس کیوں ہو جاتے ہیں یا اتنی فوفا کیوں آ جاتی ہے. یو آر واٹ یو آر، وہ آپ پاکستان میں رہیں کہ آپ انگلستان میں رہیں کہ آپ کسی اور جگہ پر رہیں یا آپ کا کوئی بھی جگہ آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ رہیں، ویل اینڈ گڈ فار یو. لیکن آپ اپنے ملک کے بارے میں کسی بھی سوشل میڈیا کے پیج پہ آ کے جو باتیں لکھتے ہیں یا پاکستانیوں کے بارے میں لکھتے ہیں وہ بہت ہی غلط ہے. اپنے پڑوسی ملک سے سیکھ لیجئے، اپنے اور ممالک سے سیکھ لیجئے، کچھ بھی ہو جائے، کتنے ان کے یہاں بھی نیوسنس ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی اپنے لوگوں کو، کسی قوم کو یا اپنے ملک کو بدنام نہیں کرتا. مگر یہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت ٹینڈنسی ہے. اینڈ انفارچونیٹلی باقی جو لوکل پوسٹ ہوتی ہیں، مجھے نہیں پتا اس پہ جو بھی ہے، اس طرح کی چیزیں، جو یہ والے جو کمپلیکسز کی میں بات کر رہی ہوں، یہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ خواتین میں بہت پائے جاتے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی. آپ لوگ پتہ ٹیڑھی میڑھی خود انگریزی بول رہے ہوں گے بچے کے ساتھ، اس کو انگریزی سکھانی ہے، اور بھی اس طرح کے مسائل ہیں. تو کم آؤٹ آف دس کمپلیکس. اتنی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ان چیزوں سے باہر آ جائیں. اور اس وقت جی ہم کس مہمان کی طرف لے کر جا رہے ہیں اپنے ناظرین کو؟ ٹھیک ہے، اب جو صورتحال چل رہی ہے اس دنیا میں، تو ہم نے بس مادہ پرستی اور جو چیزیں اپنی زندگی میں بنا لی ہیں وہ بنا لی ہیں. شاید میں اس چیئر پہ، اس کرسی پہ بیٹھ کے یہ کہتی بھی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میڈیا میں تو بہت ہی زیادہ مادہ پرستی ہے، تو واٹ ایور. لیکن ہم نے ایک طرف وہ سب کچھ بنا لیا ہے، اور دوسری طرف جو زندگی کی حقیقت ہے، جو روز ہمارے فیس بک کے پیج پہ آ رہی ہے، انسٹاگرام پہ آ رہی ہے، ہر جگہ آ رہی ہے، نیوز میں آ رہی ہے، وہ ہے غزہ، وہ ہے فلسطین، اور وہ ہے وہ ظلم جو اس زمین پر برپا ہو رہا ہے دن بہ دن، جس کی شدت اور جس کا طریقہ کار یا طریقہ واردات مختلف ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس میں سیز فائر نہیں ہو رہا. بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے یہاں تک جو ہے اپیل کر دی ہے یو این میں کہ جی یہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے یہ تو وار لاز کے بھی اگینسٹ ہے، تو اسرائیل کو پکڑنا چاہیے، اس بات سے ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. لیکن اب تک جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں. اور اس حوالے سے ہم اوور آل بات کریں گے، کیونکہ جہازوں میں اب تو
पर्चियां भी गिराई जा रही हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि जी आप अपनी जगह से नकल मकानी करें वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा। सो इस हवाले से ओवरऑल हम बात करेंगे। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर अरब जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मंसूर साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं तो हर बार यही सवालात कर करके मुझे समझ नहीं आता कि अब किस नौयत का सवाल होना चाहिए। दुनिया भर की हम मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोस देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुन रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में हो रहे हैं इर्रिस्पेक्टिवली। कोई मुसलमानों के प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिवली मुसलमान भी कर रहे हैं, क्रिश्चियंस भी कर रहे हैं, जूस भी कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड। बट स्टिल अब तक सीज फायर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं हम, और ये जुल्म और बर्बरियत जारी है। मैं समझता हूँ जी, अब जितना खून गजा में बह चुका है और खासतौर पे जितने बड़े पैमाने पे वहाँ शहादतें और बिलखुसूस बच्चों और खवातीन की हमारे सामने आ चुकी हैं जी। अब इसराइल जो है उसे एक अपनी विक्ट्री नोशन का इंतजार है। और आपने देखा है कि दुनिया की बुज़दिल तरीन फौज जो है वो जो सॉफ्ट टारगेट है उनको निशाना बना रही है, निहत्ते लोगों को निशाना बना रही है। और खास तौर पे जंग के दिनों में जिन इलाकों को या जिन जगहों को एक इम्यूनिटी हासिल होती है हमलों के हवाले से, उनको अटैक का निशाना नहीं बनाया जाता। मेरी मुराद अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर और उनके ज़ेर इंतजाम चलने वाले जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे है। और इसराइल जो है वो 44-45 दिन की इस जंग, जिसमें वो फलस्तीनियों का अज़्म और इरादा जो है वो तोड़ने में नाकाम दिखाई देता है, वो अपनी नाम नहाद फतह का जश्न जो है वो अशवा हॉस्पिटल की ढाई हुई इमारत और उसका ढाए हुए ICU और उसके ढाए हुए जो सेंसिटिव इलाके हैं उसकी इमारत पर अपना इसराइली परचम जो है वो लहरा कर रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी अखलाकी बाख्तगी का और उनके गैर इंसानी रवैयों का, कि वो लाशों के ढेर के ऊपर जो है वो अपना परचम लहराकर अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। और इस वक्त तक जिन मकासद के लिए उन्होंने ये पूरी जंग शुरू कर रखी थी या इसमें तूल दे रहे थे, उसमें इस वक्त तक उन्हें एक फर्द की बाजियाबी या उसकी रिहाई जो है वो उनके पास नहीं आ सकी। सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनियों का एक अज़्म इरादा है, कभी उनको वो शुमाल से जुनूब की तरफ वैसे इनका मकसद उन सब की बाजियाबी है भी, या कभी कभी इनकी बर्बरियत देखकर ऐसे लगता है कि इनको तो शायद मौका चाहिए था, उस मौके का इन्होंने फ़ायदा उठाया और अब ये उस पर काबिज होना चाहते हैं। तो एक तो ये बता दीजिए, जो सवाल मैंने आपसे किया कि क्या ये मौका है या ये वाकई उनकी स्ट्रेटजी है बाजियाबी की, और इससे कनेक्टिंग ये भी बात बता दीजिए कि फिर क्या इस असना में गजा पर ये काबिज हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर और आगे भी फ़लस्तीन को अपने कब्जे में ले लेंगे मुकम्मल तौर पर? जी, जहाँ तक तो आपका ये है कि जी ये इनका हकीकी मानों में अपने यगमालियों की रिहाई इनका इरादा है। मैं समझता हूँ अब तो कतन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पे उन्होंने बिला तखसीस और बिला इस्तिस्ना मुख्तलिफ इलाकों को, हॉस्पिटल्स को, मकानात को, बिल्डिंग्स को निशाना बनाया है। और बार बार जो मुज़ाहमतकार हैं उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया है कि उनके तकरीबन 50 के करीब यगमाली उन्हीं की बमबारी के नतीजे में जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और इसी नौयत की हालात देखते हुए लगता यही है कि उनका इरादा वही है जिसका आपने अपने दूसरे सवाल में इशारा किया, कि वो इस इलाके पर शायद अपना दोबारा कब्जा जमाना चाहते हैं। लेकिन आपके इल्म में होगा कि ये 2005 में यहाँ पे यहूदी बस्तियां इसी गजा की बस्ती के अंदर मौजूद थी, और इन्हीं मुज़ाहमतकारों के हमलों और इनके आए रोज जो है उनके साथ जो मतभेड़ होती थी उसके नतीजे में वो ये इलाका यूनिलैटरली खुद छोड़ के जा चुके हैं। तो लिहाजा गजा की जो हॉट सरफेस है इस पर कदम रखना या इसको अपने कब्जे में रखना जो है वो इसराइल के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये वेस्ट बैंक रही है कि जहाँ पे उनकी जगह जगह चौकियां हों और जगह जगह उनके चेक पोस्ट हो और जगह जगह उन्होंने अपने जिस अंदाज से इंस्टॉलेशंस कर रखी हैं वो हों। ये 23 लाख गयूर अहले गजा की बस्ती है। अच्छा मंसूर साहब, ये देखिए जिस तरह आप ये बात कह रहे हैं, पूरी दुनिया यही बात कह रही है। यूएन में स्पीच होती है, उसमें बात बताई जा रही होती है, उसमें ये तक बताया जा रहा होता है इतने लोग मर गए, ये उनकी लिस्ट है। पिछले दिनों मैंने वीडियो देखी, एक खातून थी वो पूरी लिस्ट दिखा रही थी कि ये इस तरह इस तरह इस तरह, इतने बच्चे, इतनी औरतें, इतने लोग, नस्ल कुशी एक तरह से जो है वो इस वक्त जारी हो सारी है। सीज फायर का लफ्ज आता रहता है, लेकिन यूएन के जो फैसला है वो नहीं आ रहा है कि जी जंग बंदी होनी चाहिए। तो ये क्या यूएन का जो किरदार है वो कैसा है, और क्या जंग बंदी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी?
देखिए जी, यूएन तो जो है बुनियादी तौर पे इस मसले का जो मैं समझता हूँ जो जड़ है वो यूएन ही है, क्योंकि यूएन में ही इस नाजायज इसराइली रियासत के फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जे को जो है वो जायज करार दे के फलस्तीन के कल्ब में जो है ये रियासत आबाद की गई। तो लिहाजा उनसे, और खासतौर पे इस वक्त जो सेटअप बना हुआ है वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल का, और उसमें 5 जो बड़े ममालिक हैं उनके मखसूस मफादात, और बिलखसूस इस वक्त यूएन जो है खुद अमेरिका और बरतानिया की एक बांदी का किरदार अदा कर रहा है। उनके जेब की घड़ी और उनके हाथ की छड़ी बना हुआ है, जिस अंदाज से वो इसको हाँकते हैं, जिस अंदाज में उसको वो चलाते हैं वो चला रहे हैं। तो लिहाजा इस आलमी इदारे की तो अब अपनी जो मैं कहता हूँ नॉमेनक्लेचर या इसका अपना वजूद जो है वही महल नजर बन गया है। इस वक्त ये जो जंगबंदी के हवाले से बात हो रही है, सीज फायर के हवाले से, इसराइल ये समझता है कि अगर इस मरहले पे उन्होंने एक जंगबंदी कर ली या सीज फायर कर लिया तो मुजाहमती तंजीमें जो यकीनन एक 45 दिन की जंग के बाद काफी थक चुके होंगे, उनको एक लिहाज से रीग्रुप करने का या अपने आप को रीअरेंज करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद जाहिर है जब इमदाद और सारा मामला खुलेंगे तो इसराइल को बहुत बड़ा एक चैलेंज दरपेश होगा दोबारा से। तो वो बुनियादी तौर पे ये समझता है कि वो शायद इन लोगों को इस 40 दिन की 45 दिन की जंग में बहुत ज्यादा थका चुका है। उनके इल्म में होना चाहिए कि माजी में उन्होंने इसी गजा पर 55 दिन और 3-3 माह लंबी जो है वो जंगें मुसल्लत की हैं, और उन्होंने बड़े हौसले और सब्र और सबात के साथ जो है वो जंगें इसराइल के साथ लड़ी हैं, और इसराइल को आज इस अंजाम तक पहुंचाया है कि जिसकी वजह से वो अपने जख्म चाटने पर मजबूर है। और इसी वजह से बिल्कुल एक बावले, यानी जो आप कह लीजिए इंसान या बावले बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा से लेके आपको नियर फ्यूचर में लगता है कि कोई स्टेप अप करेगा इसमें और कोई चीज ऐसी होगी कि सीज फायर हो सके? जी, इसमें अब यकीनन खासतौर पे जो आलमी रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है, जिसका आपने अपने इंट्रो में इशारा किया है, बिलखुसूस आपने नोट किया होगा अभी कनाडा के वजीर आजम जो है उनको उनके डिनर के मौके पे लोगों ने घेर लिया। फिर इसी तरीके से खुद जो डेमोक्रेट पार्टी है, जो अमेरिका के हुक्मरान जमात है, उनके हेडक्वार्टर के बाहर जो होने वाला मुजाहरा है वो वायलेंट शक्ल इख्तियार कर गया। उसमें पुलिस और अमेरिकी जो मुजाहिरीन थे उनके दरमियान झड़प शुरू होगी। और जिस तरीके से मशरक़ वस्ता के अंदर इस वक्त इराक और शाम के अंदर जो है अमेरिकी जो मुख्तलिफ स्टेशन हैं, जो उनके अड्डे हैं, उन पर हमले तकरीबन 400 के करीब हो चुके हैं। और ये वही वजह है कि आपको अमेरिकी ओहदेदार जो है वो यके बाद दीगरे इस खित्ते का दौरा करते हुए दिखाई देते हैं, ताकि कम से कम वो इस जंग के जो असरात हैं वो दूसरे खित्तों में, लेकिन इसराइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। यही वजह है कि अब जनूबी लबनान का महाज जो है वो एक लिहाज से गर्म हुआ है, और इसराइल को उसकी जब हद्दत पहुंची है तो उन्होंने शाम के आज कुछ इलाकों पर जो है दमिश्क के करीब मुख्तलिफ जो मज़ाहमतकारों के वहां पे ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये वो मकाम आ गया है कि जब यकीनन, और उसके बाद जो बैकएंड पे यरगमालियों की रिहाई के हवाले से जो चीजें चल रही हैं वो भी मटेरियलाइज होना शुरू हो गई हैं। कुछ बातें हैं कि जिसमें फलस्तीनी कैदी खवातीन और उनके मुकाबले में उनके जो यरगमाली खवातीन और बच्चे हैं उनकी रिहाई की बातें भी जो है, तो उम्मीद तो यही की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि एक सैनिटी अगर प्रिवेल करे अमेरिका और बरतानिया और उनके जो इत्तेहादी उनके एंड पर, तो यकीनन इस वक्त जो है एक उम्मीद की किरण तो है। और मैं समझता हूँ कि इसका सारा क्रेडिट, सारा सलाम और सारा तहसीन जो है वो उन फलस्तीनी मज़ाहमतकारों को जाता है कि जिन्होंने इसराइल को इन बातों पर जो है उनके घुटने टेकने पर मजबूर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब आपका, आपकी मौजूदगी का और ये तमाम इन्फॉर्मेशन का। और मुख्तलिफ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। कल भी मैं देख रही थी तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो उनको यूरोज़ में और डॉलर्स में और किस किस तरह से पेमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे क्या होने वाला है और इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा और इसका नतीजा क्या होगा वो तो सिर्फ हमारा रब जानता है। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं।